Hello guys, Cam Cho. I'm your host Nishit Dave, and both the Pandya brothers had a great day today. पहले तो Mumbai Indians winning their first game of this season, amazing. And then Krunal Pandya, what a beautiful performance for him in the second game. But it was great Sunday. पहले हमने देखा बहुत ही interesting contest, both the teams getting 200 plus and an amazing thrilling batting performance. उसके बाद Lucknow versus Gujarat, a very slowish pitch and a very different game from the one we saw in the morning. Well, there's a lot to discuss about both the teams and both the matches. So, without wasting any further time, let's dig in deep. And Mumbai finally won their first match. Yes, sir. एक moment पे ऐसा लग रहा था कि Tristan Stubbs, the way he is playing, might just run away with the match, but nahi. Again, it was going to be too tough to get to that 230 target that Mumbai set. But the man of the hour, Romario Shepherd, 32 of that last over and overall 39 of just 10 deliveries. He was the game changer for them. Also, with the ball, he got a very important wicket of David Warner. Again, amazing from Romario Shepherd. And with that, we start from the beginning. Rohit Sharma in the power play was amazing. What a power play for Mumbai. 75 in just 6 overs. उस moment पे तो ऐसा लग रहा था कि 230 कहीं नहीं गए भाई, सब आराम से बन जाएंगे. And especially when Rohit Sharma starts hitting, it is just beautiful to see. Gaps इतने अच्छे से वो ढूंढते हैं, and even the stroke making is amazing. It always feels like Rohit Sharma has a second or two extra to judge the ball and get in the shape to hit the ball. It was just amazing. और आज ईशान किशन ने भी बराबर साथ निभाया उनका. Whenever he was getting the strike, he was hitting the ball. तो it was a beautiful power play for Mumbai. और क्यों ना हो ये powerful start. आप मुंबई की बैटिंग डेप्थ देखिए, 6 विकेट गिर गए आज भी, उसके बाद भी अभी मोहम्मद नबी आने बाकी थे, एंड अगेन उसके बाद कोइट्जे हु कैन आल्सो हिट द बॉल. सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ. That's why it is a free license for the openers to go hard, and that's what they did. But now we move forward, and just after the power play, Mumbai Indian loses 2 wickets. Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav. Akshar Patel, first of all, to start off, he was bowling amazingly. जो बॉल उनका था, he was skidding onto the pitch, और यही हुआ रोहित शर्मा के साथ भी. आम बॉल था, skid on हो गया, and Rohit Sharma got out. उसके बाद Surya Kumar Yadav making his comeback after such a long time. Well, इट वॉज शॉर्ट लिव्ड. दूसरे ही डिलीवरी पे वो आउट हो जाते हैं. बट देन मुंबई इंडियंस नीडेड अ पार्टनरशिप. हार्दिक पांड्या प्रमोटेड हिमसेल्फ अप, और जब वो आए, ही वॉज लुकिंग गुड. द वे ही वॉज टाइमिंग द बॉल, इट वॉज लुकिंग ग्रेट. दे बिल्ड अ लिटिल बिट पार्टनरशिप. हार्दिक पांड्या, ईशान किशन बिल्डिंग पार्टनरशिप. एक मूवमेंट ऐसा आया व्हेन दे नीडेड टू गो, ईशान किशन स्टार्टेड हिटिंग एंड गॉट आउट अनफॉर्चुनेटली. उसके बाद दे ब्रिंग इन अनदर बिग हिटर. वापस थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनती है तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या के बीच में. तिलक वर्मा अगेन गेट्स आउट. हार्दिक पांड्या टिल नाउ इज रन अ बॉल. वी ऑल नो दैट दिस पिच डिजर्व्स मोर देन दैट. आज भी हमने देखा 39 किए 33 डिलीवरीज में. हार्दिक पांड्या वुड बी डिससेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ, क्योंकि इतने कम स्ट्राइक रेट पे वो नहीं खेल सकते. आज आके रोमारियो शेपर्ड आपको बचा के चले गए, पर हर बार ऐसा नहीं होगा. बट देन अगेन we know the caliber that Hardik Pandya holds. और आज भी बॉल हिट बड़ा अच्छा कर रहे थे, but he was not just able to find the gaps. So yes, one thing that they would look to improve for. But for the first time, I've seen Team David performing for MI in this season. Yes, sir. Amazing innings coming down the order. बहुत ही अच्छा खेले, and he was striking the ball at 200 plus strike rate. So took off that pressure from Hardik Pandya. और जब हार्दिक पांड्या आउट भी हुए, तो he was going from the other end. It was good to see Tim David contributing, but it was all about Romario Shepherd and Enric Nokia in that last over. 4 sixes and 2 boundaries. It was amazing. There was no area of the ground where the ball did not go. It was sublime hitting, and finally Mumbai posted a great target. Well, coming down to chase such a huge target, हमने पिछली बार भी देखा था, Delhi falls into the trap. आज भी इतने सारे रन्स कंसीड कर दिए. द बैटर्स फॉर यू आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर. वेल, डेविड वार्नर हिट अ सिक्स ऑफ रोमारियो शेपर्ड, एंड दूसरे ही बॉल पे वो आउट हो जाते हैं. स्लोअर डिलीवरी, वेल बोल्ड बाय रोमारियो. एंड उसी के साथ अब पृथ्वी शॉ पे सारा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज ही नीड्स टू परफॉर्म. इस बार पृथ्वी शॉ एंड पोरेल, दे डू मेक अ गुड पार्टनरशिप, एंड
अगेन गुड न्यूज फॉर डीसी अगर आप पॉजिटिव्स निकालना चाहते हैं. पृथ्वी शॉ वाज स्ट्राइकिंग गुड, बट रेगुलर इंटरवल्स पे उनके लिए विकेट आते रहे. एंड ऑल थ्रू दिस 230 प्लस का टारगेट आप चेस कर रहे हैं. ऑल द बॉलर्स आर गोइंग फॉर रन्स, but there is Jasprit Bumrah. He's such a bowler. He got two crucial wickets. Prithvi Shaw ka wicket, the Yorker that he bowled, toe crushing Yorker. It is amazing, amazing. Jasprit Bumrah can do this every time he comes into bowling. 4 ओवर में सिर्फ 28 के आसपास रन दिए और 2 विकेट निकाले when the opposition is going hard at you. So yes, Jasprit Bumrah, just to have him in the bowling attack is a great, great asset. आज बाकी हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स काफी एक्सपेंसिव थे. चावला जी जो उनके प्राइम स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, वो काफी रन्स के लिए गए, 2 ओवर 32 रन्स. अगेन अ सरप्राइज फॉर मी दैट हार्दिक पांड्या डिड नॉट बॉल. आज का सरफेस ऐसा था कि आप स्लोअर बॉल डालोगे तो ग्रिप होंगे, एंड हार्दिक पांड्या इज गुड इन बॉलिंग इनटू द सरफेस एंड बॉलिंग दोस स्लोअर कटर्स. सो यस, अ लिटिल बिट सरप्राइज फॉर मी. पिछले 2 मैच से वो बॉलिंग नहीं कर रहा है. आई होप इंजरी कंसर्न ना हो कोई, बट यस, I'll just like to take some credit. पिछले वीडियो में हमने बोला था कि मुंबई इंडियन नीड्स टू इम्प्रूव देयर प्लेइंग 11. आप मोहम्मद नाबी को खिलाओ, रोमारियो शेफर्ड आपके बैठे हुए, उनको खिलाने की जरूरत है. एंड गेस व्हाट दे डिड, उनको खिलाया एंड दे वॉन. रोमारियो शेफर्ड डिड ग्रेट विद द बैट एंड बॉल. मोहम्मद नामी वाज इंप्रेसिव विद बॉलिंग एज वेल. वेल, चेंजिंग दैट कॉम्बिनेशन हैज हेल्प्ड देम. आप देख लो बैटिंग कितनी डेप्थ तक जा रही है. बॉलिंग में आपके पास चावला जी अकेले नहीं है बॉलिंग करने के लिए. स्पिनर में इवन नबी इज देयर, हिज एक्यूरेसी हैज ऑलवेज बीन ग्रेट. आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह को साथ देने वाला कोई आ गया है आपके पास. कोइटजे टुडे बोल्ड वेल. सो अगेन कोइटजे गेटिंग इनटू द फॉर्म. मुंबई की पिचेस हालांकि सपोर्ट्स गुड पेस बिकॉज देयर इज गुड बाउंस इन इट, बट अगेन कोइटजे बोल्ड वेल. सो इन द एंड ऑल एंड्स वेल इज वेल. बट मुंबई वुड लाइक टू इम्प्रूव अपॉन फ्यू थिंग्स. जैसा कि हमने पहले बात की, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक रेट कुड बी वन ऑफ दोस. तो इफ दे गेट इनटू देयर विनिंग स्टेज, बिकॉज हमने देखा कि इतनी मैचेस वो हार के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम था. इवन व्हेन देयर वर 90 रन्स रिक्वायर्ड ऑफ द 5 ओवर्स, मुंबई वाज स्टिल अ लिटिल बिट पैनिकिंग बिकॉज ट्रिस्टन स्टब्स वाज देयर. बट अदर देन दैट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट स्टिल दे वर लुकिंग अंडर प्रेशर. बट इस बार जीत गए, so of course that confidence will come into the side and they will be a different side from now on. And we have always seen that Mumbai Indians pressed against the wall, they always bounce back, and that's what they did in this match. One single performance took them above, and that will give confidence to them. Especially जो top 3 batters है उनको confidence मिलेगा कि हमारे नीचे जो lower order है, they can contribute and can contribute good. So in the end, गुड मैच फॉर मुंबई. डीसी की तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी. बॉलिंग अगेन अच्छी लाइन पे बॉलिंग नहीं हो रही थी. आप वापस रन्स के लिए जा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका कॉम्बिनेशन कैसे वर्कआउट कर रहा था. ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग कुलदीप यादव अ लॉट, वो इंजर्ड है. एंड अगेन ट्रिस्टन स्टब्स वाज हिटिंग. ऑफ कोर्स 34 रन्स चाहिए थे इन द लास्ट ओवर, and it is going to be hard. It's just 99.99% of the time it is not going to happen that you will hit 6 sixes. So yes, but still आप चाहोगे कि ट्रिस्टन स्टब्स ज्यादा से ज्यादा बॉल खेले because you need to get close to that net run rate at the end of the day if you are losing. But नहीं, Tristan Stubbs did not play a single delivery in that last over. So yes, कुछ समझ नहीं आया. ललित यादव 2 रन भागने की कोई जरूरत नहीं थी लास्ट ओवर में. तो थोड़ा बहुत मैच अवेयरनेस प्लेयर्स का वो इंप्रूव कर पाए तो दैट विल बी ग्रेट. इवन अक्षर पटेल रन आउट. अक्षर पटेल वाज जस्ट कॉट ऑफ गार्ड. उनको लगा उनकी तरफ थ्रो नहीं आ रहा था एंड ही वाज जस्ट वॉकिंग इन द गार्डन. जो रोहित शर्मा ने भी पहले कहा है कि जो भी गार्डन में घूमेगा उसको. And now let's talk about Gujarat and Lucknow. Lucknow won the toss and elected to bat first. They have never lost a match in Lucknow, defending 160 or more. This is a great achievement to have. Shows how dominant you are when you are defending a target. And Lucknow, 80 to 90% of their games they have won when they are defending. And this is again superb bowling performance from Lucknow. हमने देखा कि गुजरात was very good with the ball. हाँ ठीक है, पिछले की 5 ओवर्स जो थी उसमें रन आए, बट उसके अलावा गुजरात बॉलिंग was pretty good. But now, first of all, let's talk about Gill's captaincy. I think he has improved a lot as a captain. आज उन्होंने जिस हिसाब से अपने बॉलर्स को यूज किया, राशिद खान was held up till the end. नूर अहमद के overs 4 on the trot beautifully in the middle. मोहित शर्मा used 1 over
जस्ट आफ्टर द पावर प्ले दर्शन नालकंडे का अच्छा यूज किया, उमेश यादव इन द पावर प्ले, सो परफेक्ट यूसेज ऑफ ऑल हिज बॉलर्स। बट आउट से मिडल ओवर्स में दे वर क्रूजिंग। जिस हिसाब से पहले दो अर्ली विकेट्स उमेश यादव लेके गए थे, वहां से लग रहा था कि लखनऊ इज गोइंग टू स्ट्रगल, बट देन दे सॉ अ गुड पार्टनरशिप विद केएल राहुल एंड मार्कस स्टोइनिस। केएल राहुल को फोर्स करना पड़ा अपने आप को रुक के खेलने के लिए, एंड ही कैन प्ले दैट गेम। वी ऑल नो हाउ गुड ही इज इन प्लेइंग द वेटिंग गेम। बट यस, डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ा, जिसके चलते केएल राहुल ट्राइंग टू मेक आउट अ बिग शॉट गॉट आउट। But then again, Nicholas Puran, who has been in superb form, proves out once again how good he is. Again, towards the end of the innings, पहले जो 5-10 बॉल उन्होंने खेले वो काफी 100 की स्ट्राइक रेट से खेले, रनर बॉल खेल रहे थे। स्टॉइनिस के पे भी प्रेशर आया था उसका। स्टॉइनिस गॉट टू हिज 50 एंड ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल। बाउंड्रीज एकदम ड्राइड अप थी। अगेन यहाँ पे कैप्टेंसी की दाद दूंगा मैं गिल की। तो फील्डिंग पोजीशंस वर ग्रेट, एंड एज सून एज निकोलस पूरन केम इन, Lucknow was striking at 7 runs per over, and amazing attacking field was set up. एक slip रखा हुआ था, एक short leg रखा हुआ था निकोलस पूरन के लिए, because his batting performance against Noor Ahmed has not been good. दो innings आज के पहले खेली थी, and both of the time he got out without scoring a run against him. So yes, he took his chances, but Nicholas Puran survived that early bash from Gujarat Titans, और उसके बाद हमने देखा कि आखिरी के 5 ओवर्स में he again hit ब्यूटीफुल सिक्सेस। इस बार बदोनी ने भी एक अच्छा कैमियो प्ले किया, 20 रन किए ऑलमोस्ट 11 या 12 बॉल में। सो दैट वाज अगेन अ वेरी गुड कैमियो। इस पिच पे आके इतनी तेज खेलना, इतनी तेज स्ट्राइक रेट से खेलना वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट हमने देखा है गुजरात के लिए सम वरिंग साइंस इज दैट मोहित शर्मा पिछली 2-3 मैच से टुवर्ड्स दी दैट ही इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड। सो यस, दे विल लाइक टू कंट्रोल ऑन दैट, but more than that, their worries lies in the way they batted. Power play tak they were good. 54 for 1 at the end of power play. They were looking good. Shubman Gill out होते हैं in the last over of the power play, और एक क्रॉस सिम डिलीवरी थी। देयर वाज नो नीड टू प्ले दैट शॉट। एकदम क्रॉस करके खेलना चाह रहे थे, कुड नॉट जित द बॉल एंड गॉट आउट। 54 for 1 when you are chasing 160 odd is a great start to have in the power play, और आपके पास बैटिंग भी काफी डीप जाती है। So yes, it was a good start, but just as the spinners came in, Gujarat got off. Ravi Bishnoi in his first over got Kane Williamson and a beautiful catch. केन विलियमसन गुगली सीधा बिश्नोई की तरफ मार बैठे। बिश्नोई जंप्ड, डाइव्ड एंड गॉट टू दैट कैच। 0.60 सेकंड से रिएक्शन टाइम उनका। अगेन अ वेरी वेरी गुड कैच। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर अब गुजरात पे आ गया था, क्योंकि आपके डेविड मिलर भी इंजर्ड है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है मिडल ऑर्डर में, तो वहां पे कहीं ना कहीं लैक हो रहा था एक्सपीरियंस, एंड इट वाज क्लियरली शोइंग। स्पिनर्स के सामने दे वर नॉट एबल टू रन। मतलब डॉट बॉल्स भी इतने हाई, बाउंड्रीज तो छोड़ो, स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो पा रहा है। एंड कुडोज टू कृणाल पांड्या, द वे ही बोल्ड 4 overs just for 11 runs and picking out 3 wickets. It was an amazing bowling performance, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पंड्या ब्रदर्स हैड अ गुड डे टुडे। बॉलिंग में कृणाल पांड्या हैड अ बैश, हार्दिक पांड्या विनिंग हिज फर्स्ट मैच। सो यस, LSG pulled back completely with the spinners that they had. 10 ओवर मार्क पे गुजरात मरते मरते 70 to 80 के आसपास पहुंचा था। उसके बाद भी विजय शंकर एंड तेवतिया टिल द टाइम दे वर प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि शायद जितना डीप तक लेके जा सकते हैं इट वुड बी गुड। हमने देखा नालकंडे को आज ऊपर भेजा था तेवतिया के, क्लियर कट स्ट्रेटेजी। तेवतिया इज योर फिनिशर एंड यू वांट टू गेट हिम इन दैट रोल। नालकंडे एक्चुअली प्लेड वेल, मुझे लगा काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बट अगेन इट वॉज अ डे फॉर कृणाल पांड्या। बॉल बिल्कुल भी विकेट टेकिंग नहीं था, जस्ट 1 meter here and there, it could have easily gone for a boundary. But yes, wickets continuously kept falling for Gujarat, and that's where they lost the plot. आखिरी के 6 ओवर में they already almost had more than 70 runs to do with only Tewatia down there, and even Rashid pulled off in a very bad shot. Could not pick out the slower delivery, जबकि तेवतिया आपके साथ खेल रहा है वहां पे। You could have waited for an over or so, tried to get more deep into the match, पर नहीं, you cannot blame Rashid. उनके पहले जितने भी बैटर्स आए थे, they had to play
गुड, दे हैड टू क्रिएट पार्टनरशिप, जैसा कि हमने के राहुल और मार्कस स्टोइनिस के साथ देखा था। भले ही वो 7 या 8 रन पर ओवर की रन रेट से आता, बट यू नीडेड टू ड्रैग आउट अ पार्टनरशिप विच कुड नॉट हैपन, and that's where they lost the plot. Well, that was all from my side. Please do not forget to like, share, and subscribe to our videos. You are watching the videos but not liking and subscribing, so please do that. Thank you.